50 افراد کو قرنطینہ کی مدت پوری ہونے پر واپس بھیجا جائے گا۔ مزید بتائیں گے بلال محمود۔ جی بلال، کہیے گا مزید۔ جی بالکل، میرپور خاص ضلع کی مختلف مساجد کو جو وہ قرنطینہ قرار دے کر کوارنٹائن کیے گئے۔ میرپور خاص میں موجود 350 تبلیغی ساتھیوں کو جو ہے وہ کچھ روز قبل ان کا ٹیسٹ کیا گیا۔ آج جو ہے وہ ان کو ان کے آبائی علاقوں کی طرف روانہ کیا جا رہا۔ میں بتاتا چلوں کہ چند روز قبل جو ہے وہ حکومت سندھ کی جانب سے احکامات سامنے آئے تھے کہ جو مساجد کے اندر جو تبلیغی ساتھی جن کو کوارنٹائن کیا گیا ان کے جو ٹیسٹ کیے جائیں، جس کے بعد ضلع انتظامیہ کی جانب سے چند روز قبل ان کے ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد جو ہے ان تبلیغی ساتھیوں میں سے 4 کے جو ہے وہ ٹیسٹ پازیٹیو آئے، جن کو میرپور خاص میں قائم آئسولیشن سینٹر میں جو ہے وہ کوارنٹائن جو ہے کر دیا گیا۔ جن کا کورونا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آیا، اس کے بعد جو ان کو دوبارہ سے مقامی مسجد میں کوارنٹائن کر دیا گیا ہے۔ تبلیغی مرکز میں بھی جو جماعت موجود ہے ان کو بھی جو ہے وہ یہیں پر کوارنٹائن کیا گیا۔ اس کے علاوہ ربانی مسجد میں بھی جو 12 ساتھیوں کو جو ہے کوارنٹائن کیا گیا۔ اس کے علاوہ میرپور خاص کی تحصیل کے اندر موجود ایک جماعت کو جو ہے وہ مقامی مسجد کے اندر ہی جو ہے وہ کوارنٹائن کر دیا گیا ہے۔ لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت ہم تبلیغی مرکز کے باہر موجود ہیں۔ یہاں پر جو وقفے سے گاڑیاں جو روانہ ہو رہی ہیں۔ یہاں پر تبلیغی ساتھیوں سے جب ہماری بات ہوئی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ہے ہم سے بھرپور تعاون کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ضلع انتظامیہ کی طرف سے جو ہمیں ایک لیٹر ایشو کر دیا گیا ہے، جو کہ ہم اپنی مقامی انتظامیہ کو جا کر دیں گے اور بآسانی جو اپنے گھروں کی طرف جو روانہ ہو سکیں گے۔ جی خیبر پختونخوا حکومت اعلان کے باوجود صوبے میں کرونا ٹیسٹ کی استعداد نہیں بڑھا سکی۔ خیبر پختونخوا میں کرونا کے تقریباً 400 ٹیسٹ صرف خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے لیول 3 کی لیبارٹری سے کیے جاتے ہیں۔ حکومت نے ڈی آئی خان، حیات آباد، سوات اور ایبٹ آباد میں مزید 4 لیبارٹریز کھولنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اس سلسلے میں بھی کوئی پیش رفت دکھائی نہیں دی۔ مزید جانتے ہیں پشاور سے نمائندہ نیوز لحاظ علی سے۔ جی لحاظ آگاہ کیجیے گا مزید۔ خیبر پختونخوا حکومت کے بلند بانگ دعووں کے باوجود کرونا ٹیسٹ کے حوالے سے محکمہ صحت کی استعداد نہیں بڑھائی جا سکی۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں صرف ایک ہی لیبارٹری ہے، خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں، جو بائیو سیفٹی لیول 3 رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں کوئی بھی ایسی لیب نہیں ہے جو اس سے کرونا کے ٹیسٹ مستند ٹیسٹ کرائے جا سکے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اگرچہ سوات، اس کے علاوہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں ٹیسٹوں کا آغاز تو کر دیا ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ اس کا لیول وہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے اس کو کیا جا سکے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ ڈی آئی خان، پشاور کے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس، سیدو ہسپتال سوات اور ایبٹ آباد کے میڈیکل کمپلیکس میں وہاں پر باقاعدہ طور پر کرونا کے ٹیسٹ کرائے جائیں گے، لیکن اس وقت وہاں پر کسی بھی قسم کی اس طرح کی لیبارٹری جو BSL یعنی بائیو سیفٹی لیول 3 رکھتی ہے، اس کا انعقاد، اس کو باقاعدہ طور پر انسٹال نہیں کیا جا سکے۔ اس وقت ایک لیبارٹری ہے جہاں سے 400 ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، اور تقریباً 100 یا 150 کے قریب ٹیسٹ جو ہے وہ NIH اسلام آباد بھیجے جاتے ہیں۔ ملک کی دیگر صوبے کی نسبت اس وقت خیبر پختونخوا میں کرونا کے سب سے کم ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، اور محکمہ صحت کے ایک اندازے کے مطابق تقریباً 200 یعنی 10 لاکھ آبادی پر جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر تقریباً مشکل سے 200 ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن کی مدت 24 اپریل تک بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اس حوالے سے کل کابینہ کے اہم اجلاس بلایا گیا، جبکہ سیاسی جماعتوں سے بھی مشاورت کی جائے گی۔ دوسری جانب رمضان میں مساجد میں نماز با جماعت کی ادائیگی کی اجازت ہوگی، لیکن احتیاطی تدابیر کا خیال رکھنا ہوگا۔ مزید بتائیں گے مظفر آباد سے نمائندہ نیوز سردار ذوالفقار علی۔ جی سردار ذوالفقار علی، بتائیے گا مزید۔ جی حکومت آزاد کشمیر نے لاک ڈاؤن میں مزید توسیع کر دی ہے۔ 21 اپریل کو جو لاک ڈاؤن کی پہلی مدت تھی اس کو بڑھا دیا گیا ہے 3 دن کے لیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی، جو فوکل پرسن ہیں آزاد کشمیر حکومت کے اور وزیر ہیں IT کے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کی کیا اپوزیشن جاری ہے۔ جی پہلے ہم نے چونکہ 21 تک کال دی تھی کہ 21 تک جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بالکل لاک ڈاؤن کو اسی طرح جاری رکھیں گے، اور اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے، اور جو فیڈرل گورنمنٹ کا فیصلہ ہے ظاہر ہے ہم نے اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ٹوٹل 49 کیسز ہیں، جس میں سے آج 16 کیسز ہمارے 30% کیسز جو ڈسچارج ہو کے گھر جا چکے ہیں۔ تو جس طریقے سے ہم نے کنٹرول کیا ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب کی پالیسی سے یہ کنٹرول ہوا ہے، تو ظاہر ہے پھر اگر اس سے ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو پھر سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ لاک ڈاؤن یہ تمام آزاد کشمیر میں اگر کورونا کی وبا اگر کم ہوئی ہے تو وہ صرف حکومت کے بر وقت فیصلے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہے، اور اس لاک ڈاؤن کو اس طرح فوری طور پہ ختم نہیں کیا جائے گا کیونکہ حکومت کو لوگوں کے کاروبار سے زیادہ ان کی جانیں عزیز ہیں۔ جی اور آگے بڑھیں گے، اب آپ کو بتائیں مزید اسی حوالے سے جھڈو سے خبر دیں گے، جہاں پر اس سے متعلق آپ کو بتا دیں، لیکن گجرانوالہ سے خبر شامل کر لیتے ہیں۔ گجرانوالہ کی سرکاری اسپتال کی OPD 1 ماہ سے بند ہے، مریضوں کو سخت دشواری کا سامنا ہے۔ DHQ اسپتال کے MS نے یقین دلایا کہ OPD اور سرجیکل وارڈ 1 ہفتے میں کھل جائیں گے۔ مزید بتائیں گے شفقت عمران۔ جی شفقت، بتائیے گا اس حوالے سے۔
جی بالکل، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ کرونا ایمرجنسی کی وجہ سے جو گجرانوالہ کا واحد DHQ ہاسپٹل ہے اس میں بہت سارے مسائل بھی سامنے آ رہے تھے. لوگوں کا بہت زیادہ جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی باتیں کہ جو OPD بند ہے اور دیگر جو امراض میں جو مبتلا لوگ ہیں ان کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا. اب چونکہ فیلڈ ہاسپٹل بھی بن گئے ہیں، اس کے علاوہ میڈیکل کالج میں بھی ایک جو ہے وہ فیلڈ ہاسپٹل بننے جا رہا ہے. ہمارے ساتھ MS صاحب موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. پہلے ہمیں 4 OPD بند کرنے کا لیٹر آیا گورنمنٹ سے، تو وہ ہم نے پریکٹیکلی بند کر دی. نمبر 2، ابھی تک جو ہمیں ڈائریکشنز ہیں کہ ابھی آپ نے روٹین کی سرجریز نہیں کرنی. ہم نے ایمرجنسی دیکھ رہے ہیں. ایمرجنسی کے لحاظ سے ہم نے تقریباً 350-400 بیڈ وہاں پہ ان لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے. بہت شکریہ. آپ نے ڈاکٹر جو MS صاحب ہیں ان کی بات سن لی. ان کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے ایمرجنسی طور پر ٹریٹ کر رہے ہیں، لیکن آئندہ آگے جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزیں تبدیل ہوتی جائیں گی. جیسے جیسے یہ فیلڈ ہاسپٹل کام کرنا شروع ہو جائیں گے، اس کا برڈن کم ہوگا تو ہماری جو روٹین کا چیک اپ ہے اور روٹین کی جو OPD ہے وہ بھی کام کرنا شروع ہو جائے گی. جی چڈو میں ڈبل سواری سے متعلق احکامات کی کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. پولیس اہلکار بھی قانون کو خاطر میں نہیں لا رہے. بعض مقامات پر کافی رش بھی دیکھنے میں آیا. البتہ مساجد میں سینیٹائزر گیٹ کے ذریعے کورونا سے بچاؤ کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. مزید بتائیں گے نمائندہ نیوز شکیل احمد. سندھ حکومت مہلک وبا کرونا وائرس کی مقامی سطح پر منتقلی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے SOPs میں ترامیم کر کے لاک ڈاؤن میں سختی کے احکامات جاری کر رہی ہے. گزشتہ روز بھی ہوم ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ صحافیوں، پولیس اور دیگر سرکاری عملے کو استثناء حاصل تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہے، اور پولیس کو بھی ڈبل سواری پر پابندی عائد کی گئی ہے. ستم ظرف یہ ہے کہ ٹریفک پولیس اہلکار خود ہی بھی ڈبل سواری کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ نو کوٹ اور جھوٹو شہر میں ڈبل سواری کے قانون کو بالائے طاق رکھ کر بڑی دیدہ دلیری سے خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور جبکہ پولیس بھی ان کو نہیں روک رہی ہے. جبکہ ڈبل سواری کرنے والے افراد کو گرفتار پولیس کرتی ہے لیکن بعد میں چھوڑ دیا جاتا ہے. دوسری جانب شہر کی مساجد اور امام بارگاہوں میں SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے باجبات نمازوں کی ادائیگی میں سماجی فاصلے کے لیے نشانات بھی لگا دی گئے ہیں، جبکہ نوکوٹ کی تمام بڑی مساجد میں واک تھرو گیٹ لگائے گئے ہیں. نمازی سینیٹائز ہو کر مساجد میں داخل ہو رہے ہیں اور وضو خانوں میں صابن بھی دستیاب ہے. جی حافظ آباد میں لاک ڈاؤن کے باعث یومیہ اجرت پر کام کرنے والے دہاڑی دار مزدور آزمائش میں مبتلا ہیں. بے روزگاری ہزاروں مزدوروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے. محنت کشوں کے حالات سے متعلق مزید بتائیں گے محمود علی. کورونا سے بچاؤ کے سلسلہ میں ملک بھر کی طرح حافظ آباد میں بھی لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. اس لاک ڈاؤن کے باعث جو مختلف دکانیں، مارکیٹیں ساری بند ہے، جس کی وجہ سے مزدور طبقہ جو ہے وہ خاصا پریشان ہے. تو اس وقت ہم موجود ہیں حافظ آباد کے محلہ علی ٹاؤن میں، جہاں ایک مزدور طبقہ جو ہے فاقہ کشی پہ مجبور ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ ان کی فیملی موجود ہے. ہم ان سے جانیں گے کہ کیا کہنا چاہیں گے. یہ کیا کہنا چاہیں گے جی اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کو کیا مشکلات ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے ہم لوگ اتنے پریشان ہیں کہ پہلے تو میرا آدمی مزدور ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے وہ مزدور بھی تھا، وہ ٹوپی وغیرہ بیچ کے تو لے آیا کرتے تھے، لیکن اب وہ بھی کام بند ہو گیا. بچے روتے رہتے ہیں اور میٹھا پانی بنا کے پلا دیتے ہیں اس کو، پھر چپ کر جاتے ہیں. اور کھانے پینے کی کوئی ازیا نہیں ہے ہمارے گھر میں. ہم پہ مہربانی کی جائے اور حکومت سے بھی میری یہی اپیل ہے، اور جو بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے ان لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ مجھے بڑھ چڑھ کے اس چیز میں حصہ دیں اور مجھے یہ کریں کہ میرے لیے کچھ نہ کچھ کریں. میں غریب آدمی بہت زیادہ. جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ اس جو ہے لاک ڈاؤن کے باعث جو ہے وہ خاصے پریشان ہے. اس لاک ڈاؤن کے باعث جو ہے گھر میں فاقہ کشی کا عالم ہے. بچے جو ہے جب کھانے پینے کی کوئی چیزیں مانگتے ہیں تو دودھ کے بہانے ان کو میٹھا پانی پلایا جاتا ہے. تو انہوں نے حکومت پاکستان سے بھی اپیل کی ہے اور مخیر ازاد سے بھی اپیل کی ہے کہ تاکہ ان کی فاقہ کشی ہے جو وہ ختم ہو. جی آگے بڑھیں گے. گلگت بلتستان کا حسن تو اپنی جگہ ہے، مگر لاک ڈاؤن کے باعث ہر طرف خاموشی ہے، جس سے حسین وادیوں کی رونقیں ماند پڑ گئی ہیں. غزر سے ہمارے نمائندے عابد حسین اپڈیٹ کریں گے کہ لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے. جی عابد بتائیے گا. جی ملک کے دیگر حصوں کی طرح گلگت بلتستان میں بھی لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ پر بھی مکمل طور پر پابندی ہے. اس وقت میں ضلعی ہیڈ کوارٹر گاکوج میں موجود ہوں. میں یہاں کی بات کروں تو یہاں پر آج 21واں روز ہے اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک اس ضلع میں کورونا کا ایک کیس بھی سامنے نہیں آیا. دوسری جانب گلگت بلتستان کے تمام اضلاع میں دیکھا جائے تو اب تک 8 اضلاع متاثر ہو چکے ہیں اور 2 اضلاع اب تک گرین لسٹ میں موجود ہے. دوسری جانب عوام کی مشکلات کے بارے میں بتاتا چلاؤں تو گلگت بلتستان کے بیشتر طلبہ ملک کے دیگر حصوں میں پھنس چکے ہیں، جن آمد و رفت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے گھروں تک نہیں آ پہنچے. دوسری جانب ضلعی انتظامیہ نے یہاں دفعہ 144 کا نفاذ کیا ہے اور مچھلیوں کے شکار اور
बाइक के डबल सवारी पर भी पाबंदी है और ट्रांसपोर्ट न होने के बराबर है। जी। काले की मंडी में दर्जी की दुकानें खुली हैं, लेकिन क्लॉथ मार्केट बंद होने से दर्जी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ अहमद रजा से। जी अहमद, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानब से कोरोना वायरस के पेश नज़र जो लॉकडाउन का सिलसिला जारी था, उसमें जो नरमी बरते हुए हुकूमत पंजाब ने चंद दुकानों को खोलने की इजाज़त दी है, जिसमें टेलर मास्टर भी हैं। और जो टेलर मास्टर हैं उनकी दुकानें तो खुल गई हैं, मगर जो क्लॉथ मार्केट है वो मुकम्मल तौर पे बंद है, जिसकी वजह से टेलर मास्टर हज़रात जो हैं वो बिल्कुल फारग बैठे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ काली की मंडी के मेन बाजार में एक टेलर मास्टर की दुकान पर। आइए इनसे जानते हैं कि इनका इसके बारे में। कोरोना वायरस की वजह तो लॉकडाउन के दर्जे का खत्म कर दिता है, लेकिन काम है को नहीं। अगर कपड़े की दुकाना खुलनगियां तो काम आएगा। 10-12 सूट सीते पे ने, उन्होंने भी असी फोन करने कि आके अपना सूट लै जाओ, वो अपने कपड़े नहीं लैके जाते पे। जो एक किन्ने महीने हो गए ने असी उन्होंने फोन कर रहे हैं कि अपने आके कपड़े लै जाओ, कपड़े नहीं लैन आते हैं। तो कारीगर साढ़े बिल्कुल वेले बैठे, असी बिल्कुल वेले बैठे हैं। तो बराए मेहरबानी करके जल्दी ਜਿਹੜਾ कपड़े की दुकानों भी ओपन किया जाए तो ताकि साडा काम भी खुले। उतो रमज़ान भी आ रहा तो बच्चों के भी खर्चे ज़्यादा ने, कारीगरां के भी खर्चे ने। बराए मेहरबानी करके कपड़े दुकानों ओपन किया जाए। हाँ जी, बिल्कुल, टेलर मास्टर हजरात का भी यही कहना है कि जो कपड़े क्लॉथ मार्केट है उसको ओपन किया जाए ताकि हमारा रोजगार चल सके। मुस्तहिक अफराद एहसास प्रोग्राम से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन बाज़ मकामात पर बुजुर्ग ख़वातीन को फिंगरप्रिंट मैच ना होने के बायस शदीद दुश्वारी का सामना है। ईसा खेल में भी बाज़ उम्र रसीदा ख़वातीन को फिंगरप्रिंट मैच ना होने पर मुश्किलात पेश आ रही हैं। गरीब खातून ने शिकवा किया कि वो एहसास सेंटर के चक्कर लगाकर थक चुकी हैं, लेकिन अब तक उन्हें रकम नहीं मिल सकी। आखिर वो कहाँ जाएँ और कौन सा दरवाज़ा खटखटाएँ? जो सा गरीब लोग पिन मांग के चुन के आने नहीं आते, खाने पीने आते, सारी कोई हजरिया को नहीं, मजदूरी वाला बंदा को नहीं। हुकूमत नहीं मेहरबानी हो गई, जो मैं वे नहीं आता, मेरे पैसे आने थे, मेरे को नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? ये बड़ी मेहरबानी करें, जो मेरा जो अंगूठा नहीं लगना। 3-4 बार जो मैं गई इन्होंने पीछे थे, मेरे अगले ही पीछे डके। सियालकोट में कोरोना वायरस से निमटने के लिए 6 दिन में नया अस्पताल बना दिया गया। 203 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल में बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं। मुआविन खसूसी उस्मान डार के मुताबिक अस्पताल का इफ्तिताह जल्द किया जाएगा। मजीद बताएंगे नुमाइंदा उस्मान इकबाल, जो इस वक्त फील्ड अस्पताल में मौजूद हैं उस्मान डार के साथ। जी बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कोरोना के मुमकिन खदशात से निमटने के लिए ज़िले हुकूमत की जानिब से यहाँ पर सियालकोट में जो है वो फील्ड अस्पताल का क़याम अमल में लाया गया है, जो 200 से ज़ायद बिस्तरों पर जो है वो मुश्तमिल है। और यहाँ पर तमाम जदीद सहूलियात भी जो है वो मौजूद हैं। डाइनिंग टेबल का इंतज़ाम है, साउंड सिस्टम, और इसके साथ साथ जो है वो दीगर जदीद सहूलियात भी मौजूद है। और आज इसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। और मेरे साथ इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मशीर जनाब उस्मान डार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, हम आए थे आज यहाँ सारी फैसिलिटीज़ को देखने के लिए। इसका जो बाज़ाब्ता इफ्तिताह है वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब आएंगे, अगले चंद रोज़ में वो करेंगे। और मुझे खुशी हुई है देख के कि सियालकोट का ये पहला फील्ड हॉस्पिटल जो 203 बेड्स पर मुश्तमिल बनाया गया है, इसमें तकरीबन तमाम सहूलियात मौजूद हैं। जो लोग यहाँ आएंगे, जो मुझे चीज़ देख के खुशी हुई, जो सबसे ज़्यादा पेशेंट अंदर आते हैं क्वारंटीन में, तो वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, वो अपने प्यारों से, अपने रिश्तेदारों से, घर वालों से बात करना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। तो जो यहाँ एक कॉन्फ्रेंस कॉल सिस्टम रखा गया है, अंदर से मरीज़ थ्रू वीडियो कैमरा अपने रिश्तेदारों से, घर वालों से बात भी कर सकेगा। बिल्कुल, जैसे आपने उस्मान डार साहब की बात सुनी कि 6 रोज़ के अंदर जदीद सहूलियात से रास्ता जो हॉस्पिटल है उसको सियालकोट में जो है वो उसका क़याम अमल में लाया गया है, जहाँ पर जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए जो लोग हैं, जो मरीज़ हैं, वो अपने अहलो अयाल और रिश्तेदारों से बातचीत भी कर सकेंगे। जी, आईजी पंजाब की हिदायत पर चिन्योट पुलिस के जवानों और अफसरान ने 1 दिन की तनख्वाह कोरोना फंड में अतिया कर दी। डीपीओ चिन्योट ने लॉकडाउन से मुतासरा 400 मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ से गुलाम मुर्तज़ा से। जी गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी लॉकडाउन के दौरान जो पुलिस जो है वो हरावल दस्ते का फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। एक तरफ तो पुलिस के जो जवान चेक पोस्टों और मुख्तलिफ नाकों पर अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो दूसरी जानब आई पंजाब की हिदायत पर चिन्योट पुलिस के जवानों ने भी अपनी तनख्वाहों में से एक मखसूस हिस्सा जो है वो गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए अतिया किया है। इसी सिलसिले में आज एक तकरीब जो है पुलिस लाइन में मुनक़िद की गई, जहाँ पर DPO चिन्योट की ज़ेर निगरानी गरीब और मुस्तहिक अफराद में
इस तनख्वाह की मद में जो कटौती की गई है उससे राशन खरीद कर जो है वो तकसीम किया जा रहा है। शहरियों को मास्क और हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल की हदायत भी जारी की गई हैं और ये भी DP चन्योड़ सैयद हसनैन हैदर की जानिब से शहरियों को ये भी कहा गया है कि शहरी जो है वो बिला ज़रूरत जो है वो घरों से बाहर ना निकले और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने घरों पर ही रहने पर इक्तफा करें। जी, रमज़ानुल मुबारक की आमद है। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारों का रश देखने में आ रहा है। शहरों ने ज़रूरी अशिया पर हुकूमत की तरफ से दी गई सब्सिडी पर खुशी का इजहार किया। मज़ीद बताएंगे नासिर शेख। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज के हवाले से यूटिलिटी स्टोर्स पे अशिया ज़रूरत की चीज़ों पर 2.5 अरब की सब्सिडी दी गई है, जिसके बाद जो है ना बड़ी तादाद में चीज़ें जो है वो सस्ती हो गई हैं, यानी उनकी कीमतों में कमी वाक़ा हुई है, जिसके बाइस जो है वो शहरियों में खुशी की लहर फैल गई है। हमारे साथ मौजूद यहाँ के इंचार्ज हैं। जी बताइए, किस किस चीज़ पर कमी हुई है? जी, 5 चीज़ों पर तो ऑलरेडी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पैकेज दिया हुआ है। चीनी, आटा, चावल, दालें और घी। अभी मज़ीद 19 आइटम इसमें उन्होंने प्लस करवाए हैं जो बुनियादी ज़रूरी अशिया हैं, रमज़ान में इस्तेमाल करता है हर आदमी, गरीब हो या अमीर हो। चाय की पत्ती है, चावल है, उसके बाद दालें हैं, शरबत है, मसाला जात हैं। तो ये सारे आइटम 19 आइटम जो बुनियादी ज़रूरी अशिया उस पर मज़ीद उन्होंने 10% रेट गिरा दिए हैं। हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आवाम का रश है, मगर हम खिदमत कर रहे हैं इस पोजीशन में भी जो छुट्टियों पर हैं लोग कोरोना की वजह से, मगर हम ड्यूटी कर रहे हैं। ये इनका कहना है कि यहाँ पर जो है चूँकि अशिया ज़रूरत की कीमतों में कमी हुई है, इसकी बाइस जो है वो शहरी बड़ी तादाद में यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर रहे हैं और यहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद रहे हैं, क्योंकि रमज़ान करीब है और शहरियों की ख्वाहिश है कि रमज़ान में जो है उन्हें सस्ती चीज़ें मिलें। जी, जिला घोटकी में भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। DHQ अस्पताल में वॉक थ्रू सैनिटाइजिंग गेट लगाया गया। मज़ीद जानेंगे घोटकी से नुमाइंदा न्यूज़ गाजी वसीर से। जी गाजी वसीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHQ अस्पताल मीरपुर माथेलो में। यहाँ पर जो है FFC की जानिब से सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट लगाया गया है, जिसका इफ्तिताह SC मीरपुर शहरियार कमर साहब ने किया है। आइए उनसे जानते हैं इस तालका में जो है कितने अफराद को रखने के लिए, क्वारंटाइन करने के लिए इंतजाम हैं और वबा से लड़ने के लिए ज़िले इंतजामिया ने क्या इंतजाम किए हैं। जी अच्छा, हमारे पास आप जैसे जानते हैं कि ये जो कोविड-19 है ये एक ग्लोबल एक क्राइसिस है, एक नेशनल एक क्राइसिस है और डिमांड करता है कि नेशनल कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस इसको दिया जाए, चाहे पब्लिक सेक्टर हो या कॉर्पोरेट सेक्टर हो, दोनों मिलकर इसे कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस दे, अपने रिसोर्सेज को पूल करें और इसके साथ मुकाबला करें। SC मीरपुर माथेलो का ये कहना था कि 300 से ज़ायद अफराद की आइसोलेशन करने के लिए इंतजाम मुकम्मल हैं और याद रहे कि 116 अफराद जो है घोटकी में जो है वो इस वक्त आइसोलेट हैं, जिनकी कोरोना पॉजिटिव आ गई और ज़िले इंतजामिया और निजी जो फैक्ट्रीज हैं या इंडस्ट्रीज हैं उनके तावन से इस तरह के मजीद गेट भी लगाए जाएंगे शहर के मुख्तलिफ चौकों चौराहों पर। जी, आलमी वबा कोरोना वायरस से निमटने के लिए कोट राधा कृष्ण इंतजामिया काफ़ी मुतहरिक नजर आती है। जगह जगह सैनिटाइजर गेट नस्ब कर दिए गए हैं। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में क्लोरीन स्प्रे के साथ मुस्तहिकीन में राशन की तकसीम भी जारी है। इस सिलसिले में नुमाइंदा न्यूज़ मजहर करीम मलिक असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, आलमी वबा कोरोना ने जहाँ पर पूरे दुनिया को लपेट में लिए हुए है, वहाँ पर कोट राधा कृष्ण में भी इस वबा के हवाले से पाक फौज और डॉक्टर्स भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वहीं पर इंतजामिया भी मुतहरक नज़र आ रही है। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर नाजिया मोहल भी मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या किरदार है। कोरोना के हवाले से जो हमने डिफरेंट इकदाम किए हैं, उनमें जो सबसे मेन चीज़ है वो है लोगों को अवेयरनेस देना कि इससे बचा कैसे जा सकता है। उसमें हमने अनाउंसमेंट्स जो है वो भी इंश्योर की हैं कि मसाजिद के अंदर जो है उसमें अनाउंसमेंट हो रही है। उसके अलावा जो फ्लैक्सीज हैं उनको डिस्प्ले किया गया है। डिफरेंट जो हमारे पॉइंट्स हैं जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है, वहाँ पे अनाउंसमेंट की जाती है। वहाँ पे हमने स्पेशली अभी जो है एक वॉक थ्रू जो गेट है सैनिटाइजर गेट, उसको भी अवेजा करवा दिया ताकि वहाँ पे चूँकि लोगों की मूवमेंट है जिसको रोका नहीं जा सकता, तो उसमें यह कि अगर गैदरिंग होती है तो लोगों को एक दूसरे से जो है वो कोई ऐसा इशू ना। जिनका कहना है कि इस हवाले से हुकूमत की हिदायत पर भरपूर अमल किया जा रहा है और इस सिलसिले में उन्होंने सैनिटाइजर गेट भी मुख्तलिफ जगहों पर लगवाए हैं और उनकी अवामुल नास से भी अपील है कि वो घरों में महफूज रहें और इस कोरोना से निपटने के लिए इंतजामिया का साथ दें। जी, यहाँ एक ब्रेक, मगर इससे पहले न्यूज़ अपडेट्स। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 177 अफराद जाँ बहक, मुतासरा अफराद की तादाद 8,418 हो गई। मुल्क भर में अब तक 1,970 अफराद सेहतियाब हो चुके।
सिंध में आज कोरोना के 227 नए केस सामने आए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है 5 मरीज जाँ बहक होने से कुल अमवात 61 हो गई। ख्याल रखा जा रहा है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ इम्तियाज मशहूरी। जी इम्तियाज बताइएगा। बिल्कुल इस वक्त मैं राजनपुर के नवाही इलाका नूरपुर मच्छी वाले के हाई स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पर एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के हवाले से ख़वातीन को 12,000 की रकम दी जा रही है। और ख़वातीन का सबसे पहली बात यह है कि उनका सोशल डिस्टेंस जो है वो मुकम्मल 6 फुट का फासला रखा गया है। इस वक्त भी मेरे साथ यहाँ पर जो सुपरवाइज़र हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी आप बताएँ कि आपके इंतज़ाम किस तरह हैं और ये लोगों को जो रकम दी जा रही है ये मुकम्मल दी जा रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है नूरपुर हाई स्कूल नूरपुर मच्छी वाला में ये कल से यहाँ पे ये काम स्टार्ट हुआ है। इसके हवाले से जो तमाम जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको पूरी मुकम्मल रकम दी जा रही है। इसकी हम बिल्कुल यकीन से ये बात आपको बता सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारा काम यहाँ पे जो है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है और तमाम जो वसाइल हैं और तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कंटेक्ट करके इस काम को स्मूथली जो है ना वो अपने इंजाम तक पहुँचाना है। इंशाल्लाह हम पूरी अपनी मेहनत से इसको जो है ना पाया तकमील तक हम पहुँचाएँगे। जी जैसे कि इनका कहना है नूरपुर मच्छी वाले के जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल हैं। साथ इसके ये भी बात की जाए तो पुलिस की जानिब से दफ़ा 144 की बात करें तो दफ़ा 144 की भी मुकम्मल पासदारी की जा रही है। जी शाहकोट में मुस्तहिक अफराद की बड़ी तादाद एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत रकम हासिल कर रही है। खवातीन के अलावा मर्दों को भी रकम की तकसीम जारी है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ कामरान अली। जी कामरान बताइएगा। जी बिल्कुल, लॉकडाउन से माली तौर पर मुतासर होने वाले ख़ानदानों में हुकूमत की जानब से एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत मुस्तहकीन को अमदादी रकूम की तकसीम का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। और यहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत जो ख़वातीन हैं कफ़ालत सेंटर्स पर अपना हक लेने आ रही हैं, उनके साथ साथ जो 8171 पर जिन अफराद ने मैसेजेस किए थे वो अफराद भी अपना हक लेने के लिए पहुँच रहे हैं। और इंतज़ामिया का कहना है कि अब तक 3500 के करीब जो अफराद हैं वो इस रकम से मुस्तफीद हो चुके हैं। इस हवाले से असास प्रोग्राम के अमले ने यहाँ पर बेहतरीन इंतजाम कर रखे हैं। जो अफराद रकम लेने के लिए आ रहे हैं इनके हाथों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है और समाजी फासले का भी ख्याल रखा जा रहा है। और अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो कफालत सेंटर्स पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। 2 अलग अलग काउंटर कायम किए गए हैं। एक पर मर्द हजरात अपने रकम हासिल कर रहे हैं और दूसरे काउंटर पर खवातीन अपना हक लेने के लिए पहुंच रही हैं। जी सक्खर में कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों को खिराज तहसीन 84 फीट लंबा और 56 फीट चौड़ा दुनिया का सबसे बड़ा सफेद परचम लहरा दिया गया। तकरीब में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, रेंजर्स, पाक फौज के जवानों ने शिरकत की। सक्खर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के एजाज में तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें मेयर अरसलान शेख, डिप्टी मेयर तारिक चौहान, DC सक्खर राना आदिल ने भी शिरकत की। मेडिकल स्टाफ और सिक्योरिटी एहलकारों को अजरक और सिंधी टोपी के तोहफे दिए गए। इस मौका पर फ्रंट लाइन वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तवील सफेद परचम लहरा गया। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, बच्चे भी मैदान में। बच्चों ने हम आवाज होकर नारा लगाया। जज्बा और लगन हो तो कुदरत भी मेहरबान होती है। विहाड़ी की खातून ने मुलाजमत ना मिलने पर भी हिम्मत ना हारी, शहर जमा करने और फरोख्त का मशगला बना लिया। फातिमा बीबी ने बाइज्जत रोजगार से दूसरों के लिए भी मिसाल कायम कर दी। मजीद बताएंगे मुनव्वर हुसैन रजाना। विहाड़ी के इलाके जंगल बराली की खातून ने अनोखा कारोबार करके दूसरों के लिए मिसाल कायम कर दी। फातिमा बीबी नामी खातून ने शहद की मक्खियों से शहद हासिल करके बाइज्जत रोजगार कमाने को अपना मशगला बना लिया। फातिमा बीबी का कहना है तालीम हासिल करने के बाद मुलाजमत ना मिली तो उसने हिम्मत नहीं हारी और ट्रेनिंग हासिल करने के बाद शहद की मक्खियों से शहद हासिल करने को रोजगार बना लिया। फातिमा ने 10 साल पहले 2 छत्तों से शहद निकालने का काम शुरू किया और आज उसका कारोबार बहुत वसी हो चुका है। तकरीबन 10-12 साल बाद ये हमने 2 बॉक्सेस यानी 4 बॉक्सेस से स्टार्ट किया था और आज माशाल्लाह हमारे पास 70-80 बॉक्सेस हैं।
तो हमने बहुत अच्छा इनको यानी कि समझ के उसको अच्छी तरह मैनेज किया, हर काम हमने समझा इनका। फातिमा बीबी कमाल महारत से शहद की मक्खियों को हाथों से हटाकर शहद इकट्ठा करती हैं और मनों के हिसाब से खालिश शहद बिहाड़ी और दीगर शहरों में फरोख्त करती हैं। बाहिम्मत खातून फातिमा बीबी का कहना है खालिश शहद का कारोबार मुनाफा बख्श है। कैमरा टीम के साथ मुनव्वर हुसैन रजाना, न्यू न्यूज़, बिहाड़ी। ईसा खेल में मौसम गर्म होते ही सड़क किनारे मच्छरदानियों के स्टॉल्स लग गए। शहरी मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानियों की खरीदारी करने लगे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ईसा खेल से मोहम्मद जुनेद अराई। ईसा खेल में मौसम गर्मा ने दस्तक दी तो जगह जगह मच्छरदानियों के स्टॉल सज गए। लोग मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानियों की खरीदारी करने लगे। ईसा खेल में सर्दी रुखसत होते ही मच्छरों की बहुतायत हो जाती है और गर्मी के सताए लोगों को मच्छर रात भर चैन की नींद सोने नहीं देते, जबकि मच्छरों के काटने से शहरी बीमार भी हो जाते हैं, जिससे बचने के लिए लोग मच्छरदानियों का इस्तेमाल करते हैं। जी गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों के आते ही मच्छरों ने काटना शुरू कर दिया है। हम इधर आए हैं मच्छरदानियाँ खरीदने के लिए ताकि मच्छरों के काटने से बच सकें। शहरियों का कहना है मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी ही आसान और सस्ता हल है। कैमरामैन GM फारूक के साथ जुनेद अराई, न्यू न्यूज़, ईसा खेल। झंग में थाना मोचीवाला की हदूद में बच्चों के झगड़े में वालिदैन को कूदना पड़ा तो क़यामत बन गया। मियाँ बीवी ने अपने बच्चे से लड़ने वाले 7 साला बच्चे पर तशद्दुद किया। बच्चा जख्मों की ताप ना लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने 7 साला अकमल के कत्ल के इल्जाम में मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया और दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस खबर से मुतालिक आपको आगाह करें, झंग में थाना मोचीवाला की हदूद में बच्चों के झगड़े में वालिदैन को कूदना पड़ा और मियाँ बीवी ने अपने बच्चे से लड़ने वाले 7 साला बच्चे पर तशद्दुद किया। दीपालपुर रोड पर वाक़े पेट्रोल पंप में डकैती CCTV फुटेज में न्यू न्यूज़ ने सामने लिया। इस फुटेज को डाकू असला के जोर पर 2 लाख रुपए नकदी और दीगर कीमती सामान छीनकर फरार हो गए। डाकू ने अमला को यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह से इस कार्रवाई को अमल में लाया गया था। एक और वारदात के बारे में अपडेट करते चलें। कोट राधा किशन के नवाही गांव में डकैती की वारदात, ज्वेलर के घर से लाखों रुपए लूट लिए गए। न्यू न्यूज़ ने फुटेज हासिल कर ली। गांव रत्ती पिंडी में 6 नामालूम डाकू जफर इकबाल नामी सिनार के घर रात के अंधेरे में दाखिल हुए। असलाह के जोर पर घर वालों को यरगमाल बना लिया। 17 लाख रुपए, 17 तोले सोना और मोबाइल फोन समेत कीमती अशिया ले उड़े। ठट्ठा में दर्जनों अफराद ने सरकारी राशन न मिलने के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने कौमी शाहरा को टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया। मुजाहरीन का कहना था कि लॉकडाउन की वजह से वो बेरोजगार हो गए, लेकिन उन्हें ना राशन दिया गया ना इमदादी रकम। घरों में फाका कशी की नौबत आ चुकी है। मुजाहरीन ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी, जिसके बायस 6 घंटे सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। कई घंटों बाद पुलिस और मुकामी नामवर शख्सियात की तरफ से इमदाद की यकीन दहानी पर मुजाहरीन ने एहतजाज खत्म किया। ऐसी सूरत हाल जैकबाबाद में भी देखने में आई, जहां हुकूमती राशन की अदम फराहमी के खिलाफ गुलाब माछी कोर्ट में खवातीन सरापा एहतजाज बन गई। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर हाउस के सामने एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें शदीद मुश्किल सूरत हाल में भी इमदाद नहीं दी गई। मुकामी इंतजामिया ने मुस्तहिक आवाम को सिरे से नजरअंदाज कर दिया। मुजाहिरीन ने जल्द इमदादी राशन फराहम करने का मुतालिबा किया। इसके साथ ही शहर शहर गांव गांव का सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यो।